Good evening. Good evening. Good evening, sir. What we have done Good evening. What we have done last time? So circuit containing pure capacitor. Capacitor we were doing. Yes, sir. So we have to draw the phasor diagram. Can you send me the photo? Yes, sir. Graph also. No, send me the photo. Yes, sir. I've sent it. Okay. Yes, sir. I've sent it on the WhatsApp. Okay. So we have taken three types of circuits. Circuit containing pure resistor. Now in circuit containing pure resistor, voltage and current were in same phase and the current was given by V by R. Then we have taken circuit containing pure inductor coil, and there in pure inductor coil voltage leads the current by phase angle 90 degree, and XL was in place of R we will be taking XL, and that XL was omega L or 2 pi FL. Then we have taken circuit containing pure capacitor, and their voltage was lagging behind the current by phase angle 90 degree, and in place of R we have taken XC, and XC was equal to 1 by omega C. And if you have to find the current here, I will be equal to V divided by XC. We'll start with a numerical. So write down Sir? yes. So we haven't drawn the phasor diagram and the graph for it. Phasor diagram and graph I have not plotted. No, sir. Okay. So circuit was containing pure capacitor. This AC voltage was applied. V is equal to V naught sin omega t, and the formula we got for current I naught sin omega t plus pi by 2. So the current was leading the voltage by phase angle 90 degree, and here this I naught was equal to V naught divided by XC, and XC was equal to 1 by omega C, or XC is equal to 1 by 2 pi FC. Then phasor diagram for this. Phasor diagram, as the current is leading and voltage is lagging, तो करंट तो एक्स एक्सिस में ले लो, बट वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, तो वोल्टेज विल बी इन दिस वे. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और जो फेज एंगल आएगा दैट विल बी 90 डिग्री. यहां भी फेज एंगल 90 होगा और वहां भी फेज एंगल इंडक्टर में भी 90 था, बट डिफरेंस इज हियर वोल्टेज लैग एंड देयर वोल्टेज लीड. नाउ जब ग्राफ प्लॉट करोगे
here V and I and current will start from here, because this time current is leading by phase angle 90 degree. So this will be the graph. This is for V and this is for I. Current is leading the voltage. Or you can say that voltage is lagging behind the current. So this is the phasor diagram, this is the graph. Then for DC circuit, कैपेसिटर को DC सर्किट में कनेक्ट करो. If the capacitor is connected to DC circuit, the frequency of DC is 0. DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है. This does not oscillate. तो XC जो आएगा that will be infinite, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट फॉर DC supply. That means it will offer infinite resistance, infinite opposition to flow of current. So write down, as capacitive reactance for DC supply is infinite, capacitive reactance for DC supply is infinite, so it will offer infinite opposition to flow of alternating current. Your voice and is lagging. Okay, let's see what is the case. Now tell me. Now voice is clear? Yes, Prakhar? Prakhar? I think I am not Yes, sir. audible or audible? Sir, It's lagging in between. Still voice is in the same way. No, sir. What? नहीं सर अभी सही है. Now it is okay. Yes. Okay. So cap Sir, yes, sir. yes. सर एक बार फिर से डिक्टेट कर दे जो आपने बोला था. The capacitor offers infinite opposition to flow of alternating current, because its capacitive reactance for DC is infinite. So if capacitor is connected to DC supply, no current will flow through the capacitor. No current will flow through the capacitor. तो DC सप्लाई में
जब डीसी सप्लाई में तुमने इंडक्टर को कनेक्ट किया था, हमने डिस्कस किया था, व्हेन इंडक्टर कॉइल वाज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, तो एक्सेल जो आया था वो 0 आया था। दैट मीन्स अपोजिशन ही नहीं मिल रहा था। दैट मीन्स द इंडक्टर कॉइल वाज एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग वायर, and when capacitor is connected to some battery DC, it will store the charge, but it will not allow current to flow through it. कैपेसिटर जो है करंट को अपने थ्रू, डीसी करंट को अपने थ्रू फ्लो नहीं करने देगा वंस द डीसी करंट अटेन्स द कांस्टेंट वैल्यू। ग्राफ आई हैव टोल्ड यू बिटवीन XC एंड F. Yes, check it. No, sir. No. Yes, sir. Yes or no? चलो Sir, फिर we have done. बता Yes, दे sir, रहे we have done. Sir, we have done that. XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होगा, ये XC है, ये फ्रीक्वेंसी है, इनवर्स रिलेशन है. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू विल बी गेटिंग. ये ग्राफ तुम्हें ऑब्टेन होगा. नाउ अब आते हैं एक्सेल और एक्सी पे एक साथ आते हैं. एक्सेल एंड एक्सी. एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई FL एंड एक्सी इज 1 बाय 2 पाई FC. ये दोनों फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास. एक्सेल और एक्सी के ये फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इफ इंक्रीज्ड, अगर AC की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो XL इंक्रीज होगा और XC जो है वो डिक्रीज होगा. ऑन इंक्रीजिंग frequency of AC, XL increases and XC decreases. क्योंकि XL में फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में है और XC में फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है, तो अगर तुम AC की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो XL इंक्रीज होगा और XC डिक्रीज होगा. लेट अस सपोज ये तुम्हारी XL है, ये वैल्यू XL की है और ये XC की है. अब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो तो ये XL इंक्रीज होगा और XC डिक्रीज होगा, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों सेम हो जाएंगे. XL मान लो ये वैल्यू है और XC की हाई वैल्यू है. अगर तुमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो XL इंक्रीज होगा और XC डिक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो XL एंड XC कैन बिकम इक्वल एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. नाउ एक क्वेश्चन है, how will you differentiate, what is the difference between resistance and reactance. reactance से हमारा मतलब है XL और XC. that depends what component you are taking. अगर इंडक्टर कॉइल ले रहे हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर ले रहे हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस. रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में यू हैव टू गिव अ डिफरेंस. तो क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस. देखो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की यूनिट सेम होती है. रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम है, बट हाउ दे आर डिफरेंट. दोनों अपोजिशन है, बट इन व्हाट सेंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Yes, anyone?
एक्सेल और रिएक्टेंस में कोई दोनों में से कोई ले सकते हो. रिएक्टेंस या और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होगा? सर रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में हो सकता है और रेजिस्टेंस व्हाट? नहीं होगा. पार्डन, रेजिस्टेंस इज व्हाट? सर रेजिस्टेंस कैन बी देयर इन डीसी सर्किट बट थोड़ा तेज बोलो भाई. रेजिस्टेंस. Sir, resistance can be in DC circuit, but not in रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड इन डीसी सर्किट एज वेल एज इन एसी सर्किट. दोनों में यूज हो सकता है. Yes, sir. फिर ये तो कोई डिफरेंस नहीं बना खास. और कुछ सोचो. पर सर बट रिएक्टेंस तो डीसी में हो नहीं सकता ना. रिएक्टेंस डीसी में क्यों नहीं होगा? अगर रिएक्टेंस, अगर इंडक्टर कॉइल है तो जीरो रिएक्टेंस होगा और कैपेसिटर है तो इनफाइनाइट होगा. वैल्यू थोड़ा कम और ज्यादा है लेकिन है तो. और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है. यस, रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्टेकल है इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रिएक्टेंस जो है वो एक अपोजिंग चार्ज है. नहीं. लिसन. रेजिस्टेंस भी अपोजिशन है और रिएक्टेंस भी अपोजिशन है. दोनों अपोजिशन है. हाँ प्रकार यू से. रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती. यस, रेजिस्टेंस, इसीलिए हमने ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म पहले ले लिया था क्वेश्चन पूछने से पहले. Resistance does not depend upon frequency, whereas reactance will be depending upon frequency. This is the basic difference between resistance and reactance. एक नंबर का क्वेश्चन ये बहुत इजीली पूछा जा सकता है. What is the difference between resistance and reactance? So लिख लो. Resistance does not depend upon frequency, whereas reactance depends upon frequency. This is the basic difference. Then next question, write down. At what frequency of AC? Yes. Sir, so in reactance we can use DC circuit. Reactance. Sir, in reactance we can use DC circuit. Capacitor you have used in DC circuit or not? Yes, sir. तो कैपेसिटर ने डीसी सर्किट में इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर किया था. और अगर इंडक्टर कॉइल बाई चांस तुमने यूज कर लिया तो कनेक्टिंग वायर का काम करेगा, जीरो रिएक्टेंस ऑफर करेगा. So, but after now in all the reactance circuits we have used AC alternating current. नहीं, रिएक्टेंस इज द अपोजिशन. रिएक्टेंस तो ये है एक्सेल या एक्सी है, ये तो अपोजिशन है. ये तो रेजिस्टेंस टाइप की चीज है, ये ऑफर होगा रिएक्टेंस. रिएक्टेंस इज नॉट अ कंपोनेंट. कंपोनेंट तो ये है, इंडक्टर कॉइल है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है. और ये करंट के फ्लो में अपोज करते हैं. वो अपोजिशन जो है वो रिएक्टेंस कहलाता है. So, sir, one more difference can be there in between resistance and reactance. What difference? So that resistance offers opposition to the only मतलब वो जो bearing current के लिए नहीं, रहता है. रेजिस्टेंस भी अपोजिशन ऑफर कर रहा है और रिएक्टेंस भी अपोजिशन है, तो डिफरेंस कहाँ हुआ? Sir, but resistance के मतलब वो कांस्टेंट करंट के लिए देता है ना, एंड रिएक्टेंस वेरिएबल करंट के लिए. रेजिस्टेंस एसी में भी तो लगाया, लगाएंगे अभी रेजिस्टेंस एसी में लगाएंगे. अच्छा. वो अपोजिशन देगा. अच्छा. ओके, नाउ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई
inductive reactance of inductor coil Can you pardon the question? for what frequency of AC supply inductive reactance of inductor coil of self inductance L is equal to capacitive reactance Sir, L after that? self inductance L is equal to capacitive reactance of capacitor, capacitive reactance of capacitor of capacitance C. अभी हमने तुम्हें बताया था कि इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो तो एक डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है और दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो ये किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, दैट फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड आउट. तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल, तो तुम भी इनको इक्वल कर दो. यस सर, योर वॉइस इज लैगिंग. on increasing the frequency XL इंक्रीज और XC डिक्रीज और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया. नाउ वॉइस इज क्लियर? यस. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. XL इक्वल टू XC. XL का फॉर्मूला होता है 2 पाई FL और XC का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC. उसने जैसे कहा था वैसे स्टार्ट कर लिया. उसने कहा XL और XC बराबर हैं, तो तुमने दोनों को इक्वल कर दिया और XL और XC की वैल्यू रख दी. अब फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लो और फाइनल आंसर बताओ.